بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم انسان کے جانے کے بعد اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمارے پاس مہمان ہوتے ہیں، جتنی ہو سکتی ہے ان کی خدمت کریں، یہ نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوے کا شکار ہوں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ آذربائیجان، باکو میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ ذوالفقار علی بدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب، بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی ساہی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ذوالفقار صاحب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو دورہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جتنی بھی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں نا، ان سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ پاکستان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان نے باکو جا کے، آذربائیجان جا کے یہ ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان سینٹرل ایشین سٹیٹ سے تعلقات بہتر۔ آپ دیکھیں گے 4-5 دن پہلے ترکمانستان کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں کیا تھا، جس کو ٹاپی گیس پائپ لائن کہتے ہیں، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا، اس کو بھی امپلیمنٹ کیا ہے۔ وہ صرف پاکستان کے اندر سے بیوروکریٹک جو ڈیلے آ رہا تھا اس کو بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، کیونکہ اس کی فائنینسنگ ارینج تھی، وہ ترکمانستان کر رہا ہے۔ صرف پائپ لائن نے بچھنا ہے اور اس کا صرف روڈ میپ جو ہے۔ اب یہ جو سینٹرل ایشین کی طرف پھر رشیا سے تیل آیا ہے، اب یہ سینٹرل ایشین ملکوں کے ساتھ جو تعلقات کا ایک باہمی فروغ ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اور اس کے اندر جو کریڈٹ میں دوں گا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے پچھلے 13-14 ماہ کے اندر جو پاکستان ایک پچھلے دور حکومت میں ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا تھا، اس آئسولیشن سے انہوں نے نکال کے ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے اندر پاکستان کو لے کے آئے ہیں، اور ملکوں کے ساتھ بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل جو ہے وہ ریلیشن شپ بہتر کی ہیں۔ اس سے پاکستان کا جو ایک گلوبل پرسپیکٹو ہے، گلوبل امیج ہے پاکستان کی، دنیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی۔ آپ دیکھیں کہ جب پچھلی حکومت کے اندر IMF پروگرام سسپینڈ ہو گیا ہوا تھا، بلاول صاحب کی یہ کاوشوں کی وجہ سے پچھلا پروگرام سٹارٹ ہوا، IMF کا GSP پلس ختم ہو گیا تھا، پھر GSP پلس سٹارٹ ہوا، پھر FATF میں آپ گرے لسٹ میں تھے، پھر یہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے تمام ملکوں کو بولا کہ آپ ہمیں FATF میں سپورٹ کریں۔ انہوں نے اس فورم کے اوپر جا کے FATF کے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، گرے لسٹ سے نکل کے آپ وائٹ لسٹ میں آ گئے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوتی ہے یہ پاکستان کی بیک بون ہوتی ہے، فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے، کاز ڈپلومیسی کے تھرو آپ یو کین آلویز ورک آن دا اکنامک ڈیولپمنٹ، آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں، آپ بائی لیٹرل بارٹر ٹریڈ کے اوپر ابھی دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا یہ برین چائلڈ تھا کہ انہوں نے جو ابھی میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ایران کے بارڈر پہ گئے ہیں اور ایک وہاں پہ مارکیٹ بنی ہے جس کے اوپر بارٹر ٹریڈ ہوگی، دونوں ملکوں کے جو بارڈر کے اوپر یہ مارکیٹ آپس میں دونوں ملکوں کا تعلقات بھی بہتر ہوں گے، تجارت کو فروغ دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 100 میگا واٹ کا جو پلان ہے وہ آپ ایران سے لے رہے ہیں، اس طرح کر کے آپ اپنے ہمسایہ ممالک یا قریبی ممالک سے بہت کچھ فائدہ لے سکتے ہیں، وہ آپ سے لے سکتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو آج کی ڈیٹ میں ہم یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگا سکتے، یا بہت ساری چیزیں جن کی پیداوار کرتے ہوئے ہمیں پرابلم ابھی آ رہی ہے کیونکہ ہم کمپیٹیٹو پرائسز نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ گیس بہت مہنگی ہے، گیس ہے ہی نہیں، اور اس کی نہ ہونے کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے، تو جو انڈسٹریز پروڈکشن کرتی ہیں ان کی پروڈکشن کی کاسٹ آف گڈز بہت بڑی ہے، اور جب گلوبلی جب آپ نے جا کے اس کو کمپیٹیٹو پرائس کے اوپر کمپیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ جب دوسرے ملک جو ہے اسی خطے کے اندر سے
وہ کمپیٹیٹو پرائز دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سستی گیس ہے, سستی گیس کی وجہ سے سستی بجلی ملتی ہے, اس سستی بجلی کی وجہ سے آپ جو گڈز بناتے ہیں ان کی کاسٹ بہت کم آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہے آپ کی. اب ایران گیس پائپ لائن سے آپ کو گیس مل جائے, ساتھ ٹاپی سے آپ کو گیس مل جائے, آپ کی گھریلو صارفین کا جو پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا, ساتھ انڈسٹریز کو گیس ملنی شروع ہو جائے گی, بجلی آپ کی سستی ہو جائے گی, آپ تو آپ کی اکنامکلی آپ کھڑے ہو جائیں گے. جو آپ آج کل جو مسائل ہیں, کیونکہ دیکھیں غریب بندہ تو تنگ ہو رہا ہے نا, آپ میں اور ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اصل بات حقیقت کی چاہے, غریب آدمی یا ہمارے جیسے لوگ, ہمارے گھروں کا بجٹ خراب ہو گیا ہوا ہے جب سے یہ پچھلی گورنمنٹ گئی ہے. ایون یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ بھی پچھلے آئی ایم ایف کے معاہدے کو ریویو میں نہیں لے کے جا سکی اور نہ ری نیگوشیٹ کر سکی کیونکہ اتنا سخت ون سائیڈڈ معاہدہ تھا. آج مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں, اسی جو ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی پڑی ہے اسی گورنمنٹ کو, اور آپ دیکھیں مشکل فیصلوں کے بعد پرابلم میں کون ہے, آپ اور ہم ہیں. اور ذوالفقار صاحب اس میں آپ جو بھی بات کریں, جس طریقے سے ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے مزید بہتر ہوئے ہیں, اب جو ہے وہ آذربائیجان کا جو دورہ ہے, پھر روس سے تیل جس کا ہم ذکر کریں, یہ بات تو درست ہے کہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے روابط رکھیں گے, ان کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں گے, تو پاکستان کی جو معاشی استحکام جو ہمارا سب سے اہم ٹارگٹ ہے اس میں بہتری آئے گی. دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی از ریلیٹڈ ود اکنامک سٹیبلٹی. آپ یہ پولیٹیکل اکانومی ہے, پالیٹکس وداؤٹ اکانومی اینڈ اکانومی وداؤٹ پالیٹکس کی ناٹ فلرش, دے گو سائڈ بائی سائڈ. ان دونوں کی سٹیبل ہونا پاکستان ایک ملک کے اندر, دونوں کی سٹیبلٹی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اکنامکلی سٹیبل ہوں, پولیٹیکلی نہ ہوں, تو آپ کی اکنامک کنڈیشن ورس ہوتی جائیں گی, اور اگر آپ پولیٹیکلی سٹیبل ہیں اور اکنامکلی سٹیبل نہیں ہیں تو پھر آپ کا ملک جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا, آپ ملک کے اندر لوگوں کو آسانیاں فراہم نہیں کر سکیں گے. تو اس ملک کے اندر اگر آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی رکھنی ہے, یا لائک وائز آپ کو یہاں پہ پالیسی ایسی بنانی ہے, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, انکلوڈنگ آل دا پولیٹیکل پارٹیز, تمام لوگوں کو بیٹھ کے ایک ایسی پالیسی بنانی ہے جہاں پہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا آیا کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. اگر چلنا ہے تو کیا پالیسی ہونی چاہیے, اگر نہیں چلنا تو کیا پالیسی ہونی چاہیے. اگر آپ نے نہیں چلنا تو اس ملک کے اندر اس حکومت کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھی تمام پچھلی حکومتوں کو آپ دیکھ لیں, وہ ایک چیز پہ عمل درآمد نہیں کر پائے. وہ یہ تھا جس پہ پچھلی گورنمنٹ میں خان صاحب نے بھی بڑا نعرہ لگایا تھا, وہ تھا کہ جی ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے, ہم اپنے ملک کے اندر سے اتنے پیسے اکٹھے کر لیں گے کہ ہمیں دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سکے, ریونیو نہیں بڑھا سکے. اس کی وجہ ہے کہ جو لوکل ٹریڈر ہے, جو امپورٹر ہے, جتنے لوگ باہر سے چیزیں منگواتے ہیں اور جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اکانومی میں, وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. آپ ان کو کانفیڈنس دیں, آپ وہاں پہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں. آپ لاہور کی بڑی مارکیٹ ہے, شالم مارکیٹ ہے, اور بہت ساری مارکیٹیں ہیں, 150 سے زیادہ مارکیٹ ہے, کراچی ہے, پشاور ہے, اور بڑے شہروں کی مارکیٹیں, ان تمام مارکیٹ کے ٹریڈرز, امپورٹرز اور جتنے لوگ جو ایکچوئل اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوگی. ان کو کانفیڈنس دینا ہوگا کہ ٹیکس نیٹ میں آئے تو گورنمنٹ کی یہ ایک پالیسی ہے, اس میں آپ کو تنگ نہیں کریں گے. کیونکہ ہر گورنمنٹ, آنے والی گورنمنٹ جو ہوتی ہے, وہ جب بھی گورنمنٹ میں آتی ہے پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی کو چینج کر دیتی ہے. تو اصل بات کہنے کی یہ جو پالیسیز کا تسلسل ہونا چاہیے, تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کے پاکستان کی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم پالیسی ترتیب دے دے, اور گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی آئے اسی پالیسی کو جو ہے فالو کیا جائے, تاکہ لوگ جتنے ٹریڈر ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, یہ ان کو کانفیڈنس ملا ہو, تو یہ آگے چلے. آپ دیکھیں آپ کا ملک کچھ عرصے کے بیچ میں جو ہے وہ ایک پولیٹیکلی بھی سٹیبل ہو جائے گا, اکنامکلی بھی سٹیبل ہو جائے گا, اور ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشل ہے, کیپیبلٹی ہے, ریسورسز ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر سے, اور لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں, اتنے ملک کے اندر سے ذرائع وسائل اور اتنا ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. جب ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں گے,
ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خالد قیوم صاحب. بات تو درست کہہ رہے ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب کہ شارٹ ٹرم پالیسیز، مڈ ٹرم پالیسیز اور لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ معاشی استحکام جو ہے وہ ملک میں آئے. اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ دورہ آذربائیجان اگر ہم دیکھیں تو اس میں LNG سمیت مختلف جو تجارتی ایشوز ہیں اس پر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی. دیکھیے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ لانگ ٹرم اور طویل المیعاد جو ہیں وہ ہماری اقتصادی پالیسیاں ہونی چاہیے. تو اسی حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جب بطور اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کے اندر اپنی پہلی سپیچ کی تو اس میں بھی اس وقت کے وزیر اعظم کو جو ہے چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی جی. اور بار بار اپنے اپوزیشن کے دور میں وہ یہ پیشکش کرتے رہے. لیکن سابق وزیر اعظم جو ہے وہ بار بار وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش کو مسترد کرتے رہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو سیاسی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرز پر جو ہے ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ ہماری معیشت کے لیے وہ ضروری ہے تاکہ جو اقتصادی پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل برقرار رہے. دوسرا وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ آذربائیجان ہے یہ موجودہ جو سنیریو ہے، موجودہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے جس میں پاکستان اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے، ہمیں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کے حوالے سے دباؤ کا سامنا ہے، بین الاقوامی جو ادائیگیاں ہیں ان کے حوالے سے دباؤ کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں اس دورے کی بڑی اہمیت ہے. جی. اس دورے میں تجارت کے فروغ کے لیے بھی دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں گے، کئی معاہدے بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت توانائی کا بحران ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس کا حل بھی جو ہے وہ اس دورے میں شامل ہے. اور آذربائیجان کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے معاملات بڑی حد تک جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، جس کے تحت ہر ماہ LNG کا ایک کارگو جو ہے وہ پاکستان آیا کرے گا. جی. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ بہت پرانا جو ہے ان کی وزارت عظمیٰ کے ادوار کا یہ ویژن تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ مسائل سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو اقتصادی مسائل سے نکالنے کے لیے، پاکستان کو اقتصادی جو دباؤ ہیں وہ ختم کرنے کے لیے اس کا حل ریجنل کوآپریشن، بالکل ریجنل کوآپریشن، ریجنل ٹریڈ کے اندر ریجنل ٹریڈ بڑی اور امپورٹنٹ ہے. اس میں عمر صاحب سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ افغانستان کے اندر جو بد امنی تھی حالات وہ ان کے تھی. وہاں کے جو اور ملک اس سے تھے. اب اس ریجن کے اندر چین اور پاکستان کے مفادات جو ہیں پورے ریجن کے اندر جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور چین بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تاکہ اس پورے ریجن کے اندر وسط ایشیا تک، روس تک جو ہے یہاں جو ہے وہ تجارت، ٹریڈ اور اکنامک کوآپریشن کے مواقع جو ہیں وہ بڑھ سکے. اسی کے لیے چند ماہ پہلے اسلام آباد میں جو سہ افریقی کانفرنس ہے اس کا 5واں دور ہوا جس میں پاکستان، چین اور افغانستان جو ہے ان کی حکومتیں جو ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. علی سعید صاحب ابھی اس وقت اگر دیکھیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، اور جس طرح ذوالفقار علی بدر صاحب کہتے ہیں بہت درست بات ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اگر ہم تجارت کو فروغ دیں تو وہیں پر جو ٹریڈ بڑھے گی تو کاروبار بڑھے گا، لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے، لوگوں کے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بڑھتے. یہ ایک اچھی گورنمنٹ پالیسی ہے. جی عمر بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہمسایہ ممالک ہیں ان کے جتنے سورسز ہیں اور ان کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے بجائے اس بات کے کہ ہم اندرونی لڑائیوں میں پڑے رہے ہیں. جس طرح سیاسی حالات کو خراب کیا جاتا ہے، گورنمنٹ کو خراب کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو بیک بائٹنگ کر کے معاملات خراب کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سے بالا تر ہو کے آپ کو جتنے آپ کے دوست ہمسایہ ممالک ہیں ان کے تمام سورسز کو یوٹیلائز کیا جائے. اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، اس سے یہاں پہ روزگار مہیا ہوگا، اور بہت سارے ایسے نوجوان جنہیں بیرون ممالک جانا پڑتا ہے پڑھائی کے لیے، روزگار کے لیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہیں پہ میسر ہوں گی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ان کو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پچھلے 4-5 سال میں جس طرح کا سنیریو میں نے دیکھا ہے اس میں تو کسی جگہ پہ ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں. جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی جانب سے جتنے بھی اقدامات کیے گئے ان کو پتہ نہیں کس رنگ میں پیش کیا گیا. کسی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ
जो रूस से आपका आया मतलब है दोस्त ममालिक को नाराज किया? नाराज किया गया और तमाम को नाराज किया गया, और फिर हर चीज़ पे सियासत की गई और उसको उस तरह उसके समरात नहीं लिए गए जिस तरह लेने चाहिए थे। यानी रूसी तेल की आमद पे कहा गया कि रजीम चेंज की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो रूस का दौरा किया गया, तो अब भी तो रूस से तेल आ गया यहाँ पे। अब भी तो उन्हीं ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिनकी बिना पर ये बहाने बनाते थे कि हम पे बड़ा प्रेशर है बड़े ममालिक से, उनके साथ हम एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका विजन नहीं था, उनकी सोच नहीं थी। आपका 11 प्लेयर्स का कप्तान और होना और बात है, एक बड़े मुल्क जिसके 22 करोड़ की आबादी है उसको लेके चलना और बात है। और आप अगर ज़िद पे अड़े रहेंगे और चीज़ों को ख़राब करते रहेंगे, हर चीज़ में आके अपने आप को अपनी अना को बड़ा करेंगे, तो आपके माशी हालात भी ख़राब होंगे, सियासी हालात भी ख़राब होंगे। और जिस तरह की सिचुएशन जो पिछले 1.5 साल से ये नई गवर्नमेंट ने उसको फेस किया है, मुल्क जो था वो इंतहाई तबाही के दहाने पे था। जी सख्त फैसले लेने पड़े, जी मुश्किल डिसीजन करना पड़े, चूँकि ये वाला जो साल है ये इलेक्शन ईयर है, जी तो मौजूदा गवर्नमेंट को तो वो वाले स्टेप्स लेने चाहिए थे कि गवर्नमेंट को आवाम को मुकम्मल रिलीफ दिया जाता। लेकिन देखने में यह आया कि हर जगह पे इस गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, क्योंकि ऐसी हर्डल्स क्रिएट कर दी गई साबित या तो आप अपना मुल्क बचा लें या अपनी सियासत बचा लें। तो ये वाली जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, मुझे लगता है कि इसको पिछले तकरीबन 1.5 साल में इंतहाई अवाम दुश्मन फैसले करने पड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, अगर इस वक्त जुल्फ़िकार अली बदर साहब इस वक्त मौजूदा सिचुएशन देखें तो पीडीएम जब गवर्नमेंट में आई, क्योंकि ये पीडीएम की इस वक्त अगर जिस गवर्नमेंट की हम बात करें तो माशी चैलेंज हम बार बार उसकी बात करें, वो सबसे बड़ा चैलेंज था मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना। तो उसमें तो एटलीस्ट ये बात है कि सक्सेसफुल रहे। अब डिफ़ॉल्ट होने की बातें नहीं हो रही। दूसरी जानिब इस जिस तरीके से ट्रेड बढ़ेगी, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, ये देखें पाकिस्तान, ये जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, बेसिकली पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म बना था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, और उनका ये मानना था कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए और पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पार्टीज को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और फिर पीडीएम के साथ 1 साल बाद फिर वो कोलिशन में आए और एक आईनी और कानूनी तरीके से उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी इलेक्टेड वजीर आजम को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से घर भेजा गया। और आने के बाद अब देखें कि फिर उस टाइम पे तमाम जो फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज या उनकी लीडरशिप है, उनको इस बात का पता था कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या मुल्क बचा लें या अपनी सियासत बचा लें। देखिए उन्होंने अपनी सियासत को डैमेज किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, किसी एक ने नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत के अंदर आई हैं, उन्होंने अपनी जो साख है वो मुतासर हुई, उन्होंने अपने आप को डैमेज किया, अपनी सियासत को। आप देखें अवाम में जो एक पज़राई मिलनी चाहिए थी, आप लोगों को मुश्किल फैसले करने पड़ गए। मुश्किल फैसले ना, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल गैस बिजली की कीमतें बढ़ी, हर बंदा तंग हुआ, आप और हम भी तंग हुए। लेकिन क्या था, इस मुल्क को बचाना था। अब देखें पिछले 1 महीने में पेट्रोल की प्राइस कम होना शुरू हो गई है, सस्ता पेट्रोल भी आना, क्रूड ऑयल भी आया है। अब मुझे लगता है ऐसे कि जैसे ये फैसले कर रहे हैं, जैसे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप एनर्जी के अंदर खास तौर पे सस्ती गैस और सस्ती बिजली अवाम को देंगे, तेल सस्ता देंगे, तो इससे अवाम की बहुत सारे मसाइल जो हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट जब कम होती है तो खाने पीने की और गुड्स जो मुख्तलिफ गुड्स हैं उनकी प्राइसेस भी स्लैश डाउन हो जाती हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है, इकोनॉमी आपकी एक पहिया चल पड़ता है। फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जब यहाँ पे बजट दिया जाता है, बजट के अंदर यहाँ पे जो पुराने लोग बैठे हुए हैं बजट बना रहे हैं उस मिनिस्ट्री के अंदर, वही फिगर्स का हेर फेर करके मामला कर देते हैं बजट में। लेकिन एक अच्छी चीज जो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, वो तो पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर बड़ा जोर लगाया। वो 50% कहते थे, गवर्नमेंट कहती थी 15% करें जो हुकूमती पार्टी के अंदर, लेकिन एक दरमियाना रास्ता निकाल के 30 से 35% तक बढ़ा दिया गया। अब ये करना जरूरी था। देखें अगर आपका सरकारी मुलाजम आप उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आजकल के मौजूदा हालात में मिनिमम वेज को आप 35,000 पे नहीं लेके जाएंगे तो लोग सरवाइव कैसे करेंगे?
गरीब आदमी किधर जाएगा? फिर आप कहते हैं मुल्क में रिश्वत चलती है, इस मुल्क में करप्शन है। गरीब आदमी जब नहीं कमाएगा तो वो करप्शन करेगा, जी। 2 नंबरी करेगा, रिश्वत लेगा। आपको उनको फैसिलिटेट करना है। देखिए इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजों में, एक एक सूबे के अंदर अगर आप देखें 50-50 हजार से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, या उनकी इमारतें ठीक नहीं, या स्कूल सिस्टम नहीं चल रहा क्योंकि वो सरकारी जमीन पे है, सरकारी इमारतों में है। तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस वाले या प्राइवेट सेक्टर वाले, उन्होंने अपने आप को तकवीयत दी है, उन्होंने अपने निज़ाम को बेहतर किया है, जी। अपना स्कूल सिस्टम बेहतर किया, अपने कॉलेजेस बेहतर किए हैं। अगर यही कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसी चीजें की जाए कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं, इस तरह स्कूल सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, सरकारी लोगों के बच्चे और नॉर्मल लोगों के बच्चे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मैट्रिक FA तक तालीम फ्री कर दी जाए, लेकिन उसको compete किया जाए, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे, बिल्डिंगें अच्छी करे, IT की एजुकेशन दे, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो स्कूल के अंदर फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाए। तो मैं समझता हूं कि आप देखें कि इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर एक वहां पे चीफ मिनिस्टर है जी। वो उस चीफ मिनिस्टर की मिसाल दें तो वो स्कूल के अंदर से एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों से करा रहा होता है 2-2 हजार रुपया देके। अब असल चीज है कि यहाँ पे लीडर का विजन आ जाता है, लीडर किस किस्म का है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी करने की इक़दामात करने की जरूरत है। ठीक। सिर्फ ये नहीं है कि हम आके बातें करें, अच्छा ये बातें अक्रॉस द बोर्ड हमें काम करने की जरूरत अच्छा है। ये जो बातें करने की बात आप कर रहे हैं, तो हम अगर साबिक हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी अगर बात कर लें, क्योंकि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई वफाक में, फिर 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम इस 10 साल के टेन्योर को अगर देखते हैं तो पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र दिखाई दिया, CPEC की सूरत में हो या कहीं और दीगर बिजली के कारखाने हो, कहीं ना कहीं। लेकिन 2018 से लेकर जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, तो आप लोगों की क़यादत को जो है वो जेलों में डाल दिया गया, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, लेकिन कोई अवामी फलाह बहबूद का कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता PTI के देखिए ये हुकूमतों के अंदर फलाई जो काम होते हैं ना, कोई अवाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, वो चाहे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सिर्फ वो शख्स करता है जिसने ज़िंदगी में कभी कोई नौकरी की हो या कारोबार किया हो। जिसने ज़िंदगी में कभी नौकरी ना की हो, कारोबार ही ना किया हो, आप उस शख्स से तवक्को करते हैं कि वो मुल्क को चलाएगा, आप उससे तवक्को करते हैं कि उसमें वो काबिलियत अहलियत होगी कि वो आके मुल्क को टर्न अराउंड कर देगा, मुल्क के अंदर बेहतरी ले आएगा। कभी हो ही नहीं सकता। जी। एक खेलने वाला शख्स जिसने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली और वो जब सियासत में आया हो और सियासत में आके भी क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज यूज करता हो, वो सियासी शख्स ही नहीं है। अवाम को गुमराह किया, अवाम को बेवकूफ बनाया, अवाम बन गई। असल हकीकत ये थी कि ना उस शख्स के पास काबिलियत अहलियत थी, ना उसकी टीम के पास काबिलियत अहलियत थी। तमाम के तमाम ये जो है ये एक ऐसे लोगों की टीम थी जो झूठ के साथ अवाम को गुमराह कर रहे थे। आप देखें पहले 10 माह के अंदर ये कहते थे कशकोल नहीं उठाएंगे, 10 माह के बाद सीधा भाग के गए IMF से जाके ऐसा एग्रीमेंट किया। इस हुकूमत को भी ये भी स्टेटमेंट थी कि अगर कर्जा लिया तो IMF से तो मैं खुदकुशी करूंगा। अब ये देखे ना, अब फिर उसके बाद जर्मनी जापान की सरहद मिला देना, साल के 12 मौसम गिनवा देना, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी दे देना। यार ये हवाई गुफ्तगू है भाई, प्रैक्टिकल गुफ्तगू नहीं है। प्रैक्टिकल गुफ्तगू करनी है अगर आपने इस मुल्क के अंदर नौकरियां पैदा करनी है। नौकरी सारी सरकारी नहीं हो सकती, आपको कारोबार पैदा करना है मुल्कों के अंदर। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वो जो भैंसों का जिक्र शुरू कर दिया, अब देखे ना, मुर्गी के अंडे देंगे, मुर्गियां होंगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस जब बने, प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी, गाड़ियां बेच दी, समझ गए। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस की दीवार गिराने लगे थे। तो वो एक समझदार आदमी ने कोर्ट से स्टे लिया, वो करोड़ों रुपए की दीवार बनी थी, सरकार का पैसा था, इनके मुंह से निकलता था। साई साहब को और खालिद कयूम साहब को याद होगा कि वो जब ओपन किया तो किस तरह नुकसान पहुंचा था, अगर आप लोगों को भी याद हो, क्योंकि हम तो रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौर में। देखिए वो अवाम के लिए करना, ओपन करना बुराई नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा अवाम के लिए खोल दिया गया।
भाई वो आप देखें वहां पे लोग जाके खाते पीते थे, गन डालते थे, छोड़ के आ जाते थे, उल्टा खर्चा शुरू हो जाता बिल्कुल था। उल्टा खर्चा शुरू हो जाता था। खालिद करीम साहब, ये जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक ख्वाब दिखा देना और अमली तौर पर काम करने में बड़ा फर्क होता है। देखिए, यहाँ बात हो रही थी कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कोई जो है वो इल्जामात की बात की, लेकिन कोई मंसूबा नहीं दिया। जिस तरह आप कंपैरिजन कर रहे थे साबिक नवाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत था उससे, जिस तरह बिजली के कारखाने लगाए गए, 14,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में जो है वो डाली गई, लोड शेडिंग का खात्मा किया गया, दहशत गर्दी का खात्मा किया गया, पूरे मुल्क के अंदर मोटरवेज का जाल बिछाया गया। तो उस हवाले से जरा आप पीटीआई की ये जो 4.25 साल की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ पे पिछले बड़ी तवील हुकूमत पिछले 5 साल भी शामिल करें, 2008 तो पूरे जो पीटीआई की 2013 2013 से लेकर 2023 तक जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, उसमें अगर आप देखें तो एक मंसूबा जो है बीआरटी का जो शुरू किया गया वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, और उस पर 100 अरब रुपए जो हैं वो अब तक खर्च हो चुके हैं, और ये मंसूबा भी सफेद हाथी साबित हुआ है। जबकि आप जानते हैं किसी लाहौर शहर के अंदर जब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त जो मेट्रो बस का मंसूबा था वो 32 अरब रुपए की लागत से और अपने वसाइल से, बीआरटी में सारा एशिया डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया गया है, और पंजाब में जो मेट्रो बस का मंसूबा था वो पंजाब हुकूमत के अपने वसाइल से वो मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया गया। और उसके बाद फिर ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो है वो लाहौर शहर, इसी लाहौर शहर में जो है वो मुकम्मल हुआ। और ये नहीं किया बल्कि 18वीं तरमीम के नतीजे में सूबों को जो अजाफी एनएफसी के तहत जो वसाइल मिले उनकी मुनसफाना तकसीम जो है वो पूरे सूबे के अंदर की गई कि लाहौर के अंदर मेट्रो बस का मंसूबा, साउथ पंजाब में मुल्तान के अंदर मेट्रो बस का मंसूबा दिया, और रावलपिंडी में मेट्रो बस का मंसूबा दिया। अगर लाहौर के अंदर पीकेएलआई का स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा 23 अरब रुपए की लागत से दिया गया, तो साउथ पंजाब के अंदर भी स्टेट ऑफ द आर्ट तैयब उर्दवान हॉस्पिटल जो है मुजफ्फरगढ़ में वो कायम किया गया। बदकिस्मती से पीटीआई का जो दौरे हुकूमत था उसमें सूबे के वसाइल भी, पंजाब के वसाइल भी 2 जिला तक महदूद, एक डेरा गाजी खान तक क्योंकि उस इलाके से सूबे के वजीर आला का तल्लुक था, और दूसरा मियाँ वाली जहां से साबिक वजीर आजम का तल्लुक था। जी। फिर बदकिस्मती से जी। जब परवेज अलाही साहब सूबे के वजीर आला बने तो फिर सूबे के वसाइल जो हैं उनका रुख सिर्फ 2 जिला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तक जो है वो रहा। वो जिस तरह जुल्फकार अली बदर साहब बात कर रहे थे कि सिर्फ ख्वाब दिखा देना बात अलहदा होती है, खालिद करीम साहब अमली तौर पर काम करना जो होता है वो प्रोजेक्ट्स फिर दिखाई भी देते उसके लिए प्रैक्टिकल बंदे का होना जरूरी है। हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिकल बंदे को। सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाना हो ये वैसे मुल्की जुल्फकार- मंसूबे बनाना और बात है। देखिए ये जो सोशल मीडिया का है ना, खालिद साहब ने बात उस टाइम कर रहे थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑफर की उस टाइम आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने भी अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए उनको कहा कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, तो आप हुकूमत चलाएं, हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते, लेकिन नहीं कर सके क्योंकि काबिलियत अहलियत नहीं। एक बंदा जो क्रिकेट खेलता रहा है उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप देखें कि अगर मुझे यहाँ से उठा के या खालिद साहब को या अली साहब को या आपको कहा जाए कि जनाब आए गाड़ी का इंजन खराब हो गया ठीक करें, आप और हम नहीं कर सकते। हर बंदा अपना काम, हर बंदे की अपनी फील्ड है। जी जी। सियासत जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज का प्लेटफॉर्म बना होता है। पार्टीज में आप जाते हैं, आप फिर काम करते हैं, आप एक ड्यू प्रोसेस से गुजरते हैं, आप सीखते हैं कुछ सीनियर से, कुछ जूनियर से, कुछ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, सियासी आदमी सबसे पहले उसकी एक होता है कि वो लोगों की गमियों खुशियों में जाता है। एक काम बड़ा अच्छा किया साबिक वजीर आजम ने कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खेले, पाकिस्तान की मीशत के साथ खेले, और सियासत में आकर इल्जामात की जो सियासत है ये काम जो है ये काम उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ किया। और मीशत के साथ जो खेला, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, जो बैन अल-अक़वामी बड़ा जरीदा है टाइम वो लिख चुका है कि पाकिस्तान की मुआशी
तबाही के जिम्मेदार जो हैं वो साबिक वजीर आजम हैं और उनके दौर में मुआशी बदहाली का आगाज जी बिल्कुल जी साहब बिल्कुल एग्रेसिव हो के आप कोई ना कोई क्रिकेट मैच तो जितवा सकते हैं। मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने भी खेली, आपने भी खेली होगी तो क्रिकेट। क्रिकेट तो सारे आप किसी जगह पे एग्रेसिव हो के कोई मैच जितवा लेंगे, लेकिन ज्यादातर मैच आपके हाथ से जाते हैं। जब आप बोल्ड डिसीजन करते हैं, जब आप सोच समझ के डिसीजन नहीं करते तो मैच में भी आपको हार ही मिलती है। तो यहाँ पे आके जो इन्होंने एक नज़रिया दिया और एक सोच दी और जो नौजवान नस्ल को इन्होंने ख़राब किया, उसके फिर जो नताइज सामने आते हैं वो जनाह हाउस में आग लगाने की सूरत में आते हैं, तोड़ फोड़ की सूरत में आते हैं, सड़कें ब्लॉक करके इस बात को अपना हक समझना कि सरकारी अमलाक को तोड़ा जाए, गाड़ियों को आग लगाई जाए, फौजी तनसीबात पर हमले किए जाएँ और लोगों को मारा जाए। मैंने खुद यहाँ पे कवर किया है ज़मान पार्क के बाहर कि सरकारी पेट्रोल बम मारते थे, फिर सरकारी जो पुलिस की गाड़ी आती थी उसके साथ इस तरह रवैया अपनाया जाता था जैसे किसी दुश्मन मुल्क की कोई गाड़ी यहाँ पे आ गई है। तो आपने जिस तरह की सोच अपनी नौजवान नस्ल को दी है, आपने सवाए सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाने के कोई मंसूबा यहाँ अब वो ट्रेंड नहीं बन रहे वैसे, अब तो नहीं बन रहे ना, अब तो चीज़ें कंट्रोल में है। लेकिन देखें ये कि जो जिस तरह लोगों के बच्चे इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, फैमिलियां मुश्किल का शिकार हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और जब पुलिस उनके घर में जा रही है, वो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट्स दिखा रही है, वीडियोस दिखा रही है, तो तब उनको समझ आ रही है कि इस फितने ने कहाँ तक लोगों को पहुँचाया है। फिर सबसे बड़ी बात ये अली साहब, ये जो बात कर रहे थे कि घरों में लड़ाइयाँ डलवा दी हैं, भाई भाई से लड़ पड़ा, माँ बाप से बच्चे लड़ पड़े, आपस में बड़े दूसरे की जो इखलाकियात का दामन छोड़ दिया, घर में बैठते खाने की मेज पे घर वाले लड़े। देखिए ये एक ऐसा इखलाकियात को गिराने वाला काम किया कि मुआशरे के अंदर एक डिवाइड डाल दी, ऐसा डिवाइड डाला कि अब उसको जो जो भुगत रहा है तो उन सब के सामने चीजें आ रही हैं कि इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ले गए थे जी। ये तो 9 मई के अंदर जो सियासी लोग थे वो सियासी कारकुन सियासी दहशतगर्द बना दिए, और उन्होंने बाहर से किसी दुश्मन मुल्क ने आके ये काम नहीं किया जो इस मुल्क के अंदर सियासी दहशतगर्दों ने कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सही साहब आप तो 9 मई का वाकया रिपोर्ट भी करते रहे, कवर भी करते रहे, आपने देखा भी है। उससे पहले ये ज़मान पार्क भी गए और बिल्कुल मुझे याद है कि जब वो वैसे उस वक्त ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी जब वो पेट्रोल बम जो पुलिस के ऊपर उन्होंने अली नासिर रिजवी जख्मी हो गए। गवर्नमेंट की जानब से बड़ी यहाँ पे पेशेंस शो की गई और कोशिश की गई कि इस तमाम के तमाम जो मामलात हैं इनको बेहतर तरीके से हल किया जाए। लेकिन जब भी पुलिस फोर्स ने ज़मान पार्क की तरफ गई है, पुरअमन तरीके से गई है, उनको मना किया गया है कि असलहा का इस्तेमाल नहीं करना, तो मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया और मैंने वहाँ पे पथराव भी होते देखा है, वहाँ से पेट्रोल बम गिरते हुए भी देखे हैं, डंडे भी पुलिस फोर्स पे इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। अली नासिर रिजवी अब बेहतर है, दूसरा जो ऑपरेशन हुआ है वो काफ़ी बेहतर है, उम्मीद है कि कोई एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा ज्वाइन करेंगे। लेकिन जितने भी लोग ज़ख्मी हुए, जितनी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें जो आपकी मेंटल अप्रोच है वो उसी बंदे की आ रही थी जो बंदा कहता है कि मैं जो है जो मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को इस लेवल पे ले जाएं कि वो जो सियासी दहशतगर्दी की तरफ चले जाएं और हर चीज़ में इतना सख्त रवैया रखें कि किसी की बात को सुनने को तैयार ही ना हो। सियासी लोग तो हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। मैं अक्सर जो चीज़ें कवर करता हूँ, मैं IGFS बैठा होता हूँ, तो सियासी लोग आते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं, तो किसी ऐसे बंदे की सफारी कर रहे होते हैं जिसकी नहीं करनी चाहिए, और वो खुद भी इस चीज़ को ऑन कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि वो ये हमारे वोटर हैं, हमारे इलाके के 15-20 मोअज़्ज़ीन आए थे, तो अवामी नुमाइंदे का तो ये काम है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चले, मामलात को हल करे। आप वहाँ पे बन जाएं एक महात्मा बन के और आप कहें जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, चाहे पूरा मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पे चला जाए। IG पंजाब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये जितनी भी 9 मई के वाक़यात हैं, जितनी फौजी अमलाक पे हमले हुए हैं वो 2 घंटे के अंदर अंदर हुए हैं, पूरी प्लानिंग के तहत हुए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सियासी बंदा है? ये 170 व्हाट्सएप ग्रुप थे जो पुलिस ने अब तक जिनको पकड़ा है, और उसमें देखा गया है कि ये सारी प्लानिंग जो थी ये पिछले 4 माह से चल रही थी। और इसमें कितनी तकरीबन 115 कॉल्स हैं जो पुलिस ने ट्रेस किए हैं, जिनके जरिए एक दूसरे को मोटिवेट किया गया है। और दूसरे शहरों में क्योंकि साहिब साहब आप जेल कवर करते हैं, ये बीट कवर कर रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने एक इल्ज़ाम लगाया था, जबकि खुद जो उनकी अपनी जो आई थी
सनम जावेद और जो दीगर से, उनका कहना था कि हमारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा। तो क्या हालात है वहाँ पे जेलों में, खवातीन के साथ जेलों के हवाले से बता दें। उमर भाई, एक बात ये है कि जो इज्जतदार लोग होते हैं वो इस तरह की बात ही नहीं करते। ये बात तो आप अपनी मिसेज को लेके जाते हैं शीट्स ऊपर दे के, मुंह के ऊपर नकाब करा के, और दूसरों की माँ बहनों के बारे में कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। यार कुछ खुदा का खौफ करें। जेल में तो ये मुमकिन ही नहीं कि जेल में खवातीन बैरक में कोई मर्द दाखिल हो सके। उसका डबल डोर लॉक है। अच्छा। उसमें खवातीन जो जेल सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, तमाम जो अटेंडेंट्स हैं वहाँ पे वो खवातीन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, तमाम का तमाम स्टाफ है। जो खाना तकसीम करती हैं इवन वो भी खवातीन ही करती हैं। तो ये एहलकार नहीं जा ये सकता। पॉसिबल कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, डबल डोर इनका जो है वो लॉक्स हैं। और इसमें पिछले दिनों को 2-3 जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं उनकी जानब से कवरेज भी की गई है और तमाम चीजें वाजे की गई हैं कि वहाँ पे मुमकिन वो भी तो बना। तो आप अगर बात की जाए परवेज भाई साहब, कमीशन की जो तंजीमें हैं वो भी जेल का दौरा कर चुकी हैं, वो भी इसकी इल्जाम की नफी कर चुकी हैं। उनके अपने कारकुन जो गिरफ्तार है वो खवातीन, वो नहीं, आप नफी कर देखें रहे ना हैं। आप किस तरह उन लोगों का इमेज खराब कर रहे हैं कि उनको हरासा किया गया, उनके साथ कोई ऐसी बदतमीजी की गई। तो ये चीजें एक बड़े लीडर के लिए ये चीजें होनी नहीं चाहिए। लीडर और फितरे में फर्क ये सोच जो है ये गलत सोच दी है, लोगों को गलत तरफ लेके गए हैं। नौजवान नस्ल का, पूरी एक नौजवान नस्ल खराब कर दी है। आप देखें, मेरा एक दोस्त है तो उनका बेटा है वो पीटीआई का टिकट होल्डर था, तो उन्होंने कहा मुझे बाकी तो किसी चीज़ की समझ नहीं आई, मुझे पिछले 4-5 साल में ये समझ आई है कि हर घर में एक बदतमीज जरूर दिया है, जो अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करता है, वो लड़ाई करता है। तो ये जेलों में अब इनकी बारी है। ये तो पहले ये लोगों को बातें करते थे कि ये बीमार हो जाते हैं, ये जाके विजिट करते थे, मॉनिटरिंग करते थे। तो अब कोई कहता है मैं 7 दिन से कपड़े धो रहा हूँ, कोई कहता है मुझे खाना नहीं मिल रहा, हालांकि मुझे पता है उनको बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। वो ड्रामे करते हैं। और मुझे पता है वो एक सरकारी अफसर जो है उसको चोरी देसी मुर्गी भिजवाता है, उनको फ्रिज भिजवाती है। तो ये चीजें हैं कि आप बर्दाश्त करें ना। पहले तो आप लोगों को बातें करते थे, जो पार्टी के इनके सदर, जो इनके पार्टी के सदर चौधरी परवेज भाई साहब, तो वो ये तो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका भी नहीं मिल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल में कैसे मिलेगा जी? जेल में आपके जेल में हवालात ही है इस वक्त, आपका ट्रायल चल रहा है, तो आपको जेल के अंदर कौन ये सारे सोर्सेज फराहम करे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? आप चीज़ों को बर्दाश्त करें, अब आप पे जो इल्ज़ामात हैं उनसे निकलें, उसके बाद आके ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जिस तरह आपने नून लीग की क़यादत को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को बग़ैर किसी वजह के झूठे मुकदमात बना के जेलों में फंसाया, फिर उस चीज़ को मॉनिटर किया कि किसी जगह पे फैसिलिटेट तो नहीं किया जा रहा, और इतनी प्लानिंग के साथ करते थे। मैं उस पर आऊँगा कि चांद रात को आपको याद है आपकी क़यादत को गिरफ्तार करना, नून लीग की क़यादत को भी इसी तरीके से जान के कि जमानत ना हो जाए। इन्होंने ये देखे ना, वो मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि ये कहते थे वहाँ पे अपने आप को बल्ले बल्ले करवाने के लिए, जैसे सियासी लोग करते हैं कि मैं जाके अभी नवाज शरीफ की बैरक से एसी उतरवा रहा हूँ, टीवी उतरवा रहा हूँ। सियासी लोग इस हद तक नहीं जाते। तो ये जो आपने चांद रात की हाँ, वो मैं तालपुर साहबा किया, लेकिन ये जो इन्होंने किया फिर ये उतार ही नहीं सकते थे चूंकि मेडिकल बोर्ड की जानब से रिकमेंड किया गया था। वो सारी चीजें खवातीन के साथ जो बदतमीजी वाला सलूक तो फरियाल तालपुर साहिबा के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ, शहबाज शरीफ साहब की बेटी आई तो उनको अदालत में जिस तरीके से लेकर आए, मरियम नवाज की मुझे वो पेशियां भी याद है जब जो है वो इंतहाई सख्त शदीद गर्मी में होती थी और उसमें जो है वो जिस बदतमीजी के साथ लाया जाता था, और उनके वो खुद अपने वाक़यात भी बताती हैं कि जो उनके साथ सलूक किया जाता था वहाँ पर, फिर इसी तरीके से आपकी क़यादत भी। तो खुद तो जो आपने सलूक किया है, कम से कम पीडीएम की गवर्नमेंट ने वो सलूक नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने फिर भी जो है वो कहा है कि आईन और कानून के मुताबिक जो जो फैसिलिटीज़, अव्वल तो वो कैदी हैं, अगर मुजरिम अगर जो उनके हकूक़ है वो ज़रूर मिलेंगे। देखिए उमर साहब, इस मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है ना तो इसमें अमीर, गरीब, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून होना चाहिए। आप देखें कि पीपल्स पार्टी का या किसी और जमात का जैसे अगर मुआवजा किया जाए तो बेल ही नहीं लगती थी कोर्टों में, जज सुनने को तैयार नहीं होते थे। इधर इनको केस लगता है, इनका रिमांड होता है। रिमांड में पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में, मैंने नहीं कभी कोई देखा कि किसी को रिमांड के दौरान बेल दे के केस से बरी कर दिया हो कि जनाब जाएं, आपको हमने रिलीफ दे दिया जी। नैब का एक दफा रिमांड हुआ, और रिमांड ने पूरा होना है, उसके बाद फिर अगली पेशी होनी है। ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं कि पीटीआई के लोगों के साथ
जो जी कोर्टें उनको फैसिलिटेशन दे रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड है। जी ये ऐसा अगर इस तरह ही करना है तो फिर मैं समझता हूं कि फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं उसी पर बात कर रहा हूँ कि अभी जो खवातीन के ऊपर इन्होंने अपनी कारकुनान के ऊपर हवाले से एक इल्ज़ाम लगाया, फिर उनके कारकुनान ने नफी की, लेकिन आपकी तो क़यादत को चांद रात पे जो है वो फरियाल तालपुर साहबा को चांद रात पे ये उठा के जेल में ले गए थे। आप देखे ना कि इन लोगों की ज़हनी हालत के ऊपर मुझे तरस आता है। इनका जो एटीट्यूड होता था, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये सियासी लोगों ये का attitude आप मैंने तो आपको पहले कहा है सियासी लोग नहीं थे, क्योंकि सियासी लोगों के अंदर ना लचक होती है, सब्र होता है, बर्दाश्त होती है, और सियासी लोग फिर आगे एक दूसरे के साथ रवादारी इज्जत के साथ बातचीत करते हैं। इन लोगों का मिजाज आप देखें, इन लोगों को किसी ने नहीं किया, इन लोगों को तकब्बुर ले बैठा है। जो इनमें तकब्बुर था ना, क्या ये पार्टी इनकी पीटीआई की लीडरशिप में और क्या इनकी दूसरे लीडरों में, वो तकब्बुर इनको ले बैठा है। अल्लाह की तरफ से इनको मार पड़ी है। आपने हमने क्या करना अल्लाह था, की कुछ तरफ भी नहीं। अब बात करें, अल्लाह के घर गए हुए थे, वहां पर भी नारे लगवा दिए गए। ये कितने अफसोस की बात है। वहां पे तो हमें सिर्फ दीन के हवाले से सोचना चाहिए, अल्लाह को राजी करने का सोचना चाहिए। वो याद है कि कितनी बदतमीजी, जो साई साहब भी बात करते कि खानदान हर मतलब कहीं ना, और जो आपने भी बात की कि बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया इन्होंने। देखिए असल बात यह है कि सियासत में आप एक दूसरे के साथ इज्जत रवादारी से, इन्होंने अवाम को जो एजुकेट किया, अपनी जो सियासी पार्टियां तरबियत करती हैं अपनी कारकुनों की, वो ऐसी तरबियत करती हैं कि उनको बताती हैं कि आपने इधर जाके पुरअमन एहतजाज करना है। पीपल्स पार्टी की तारीख भरी हुई है कि डंडे पड़े, मारे पड़ी, लोगों को उठा के जेलों में ले गए। बाकी पार्टीज ने भी जेलें देखी हैं, उनकी लीडरशिप ने भी। लेकिन इन्होंने क्या कहा, कहीं लाइन लगी हो, चीख, बंदे को मार देना है, कोई आगे नहीं जाने देना, कोई कुछ नहीं करने देना। एक पिछले 5-7-10 सालों में ऐसा एजुकेट किया है, ऐसी तरबियत की अपने कारकुनों की, उनको ऐसा सोच उनकी बनाई है कि उनको ज़हनी तौर पे मफलूज करके ज़हनी बीमार बना दिया है। अब वो ज़हनी बीमार बनने से आप जब उन पीटीआई के वर्कर्स की गुफ्तगू सुनते हैं तो मुझे तो तरस आता है उन लोगों पे कि ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए तरस ही आने वाले ना, जो ज़हनी बीमार हो जाए, ज़हनी बीमार हो जाए, ज़हनी तौर पे बीमार हो जाए, तो आप उसके लिए अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह इसको नेकी की हिदायत दे दे, और क्या कर सकते हैं, सेहत भी दे। ज़हन की देखिए ना, सेहत आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आप देखें कि जो लोग जिनको ये नहीं पता, अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं पता, इखलाकियात का ही नहीं पता, तो वो उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब ही है ना कि ज़हनी बीमार हो गया, कि घर वालों को, माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दी, बहन भाइयों से बात करना छोड़ दी, सही, बाहर मुआशरे में जाके किसी से मिलना है तो आप या कोई इज्जत से बुलाने की बजाय तू तड़ा करके बात करना, गाली देनी हर एक के साथ। फिर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कौन क्या बोल और रहा है, ऐसा महसूस होता है कि बस वो ठीक है, यानी मैं ठीक हूं और कोई सारे गलत। आइडेंटिटी किसी की पता ही नहीं, और लोगों के साथ इतनी बद अखलाकी कर रहे होते हैं कि उनको, भाई पहले अपना आप तो बताओ कि आप हो कौन, फिर आप अगली बात करें। सही। जब आप किसी को ऐसे ही बुरा भला कह देंगे, फिर अल्लाह का भी कानून कुदरत भी है, अल्लाह का भी इंसाफ है, इनके ऊपर भी तो फिर आना ही था। देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। बिल्कुल आना ही था कि खालिद क़य्यूम साहब क्या कहेंगे इन शॉर्ट इस अगर इस सारी सूरत हाल के देखिए, मैं हवाले से। समझता हूँ कि सियासत के अंदर जो है वो बर्दाश्त और सियासी रवैये अपनाने की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी आपस में पीडीएम गवर्नमेंट कर ही रहे हैं। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि मोहतरम अली बदर साहब जो हमारे थे, इनके जो वालिद मोहतरम जहांगीर बदर, मैं बिल्कुल, मुझे भी वो ज़हन है, जहांगीर बदर साहब, वो भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और अंदरून से थे, लाहौर के पीपल्स पार्टी और नून लीग की बदतरीन महाजराई थी, सियासी मुखालफत थी। लेकिन उस दौर में भी सियासी मुखालफत के बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का भी अपना एक जो है वो राब्ता बिलवास्ता तौर पर रहता था, और जहांगीर बदर साहब का भी जो है वो मैं आपको उसी खालिद क़य्यूम से उसी बात पे कह रहा हूँ कि जहांगीर बदर साहब अंदरूने लाहौर से अंदरूने लाहौर से थे, और उस वक्त वहां से अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी आला क़यादत थी, ख्वाजा साद रफीक थे, लेकिन अगर मुलाकात हो जाती या कहीं होती थी तो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ का रिश्ता जो आज भी कायम है। तो ये सारी खराबियां जो है ये जिस पार्टी ने दी हैं, आज वो कॉन्सिक्वेंसेज तो भुगत रहे हैं। आप समझ तो नहीं, बिल्कुल भुगत रहे हैं। अब ये देखें जो कुछ हो रहा है, फिर मसला ये है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते
جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جو نون لیگ کے سیاسی قیدی تھے، ان تمام لوگوں نے برداشت کیا ہے، اور وہ میں نے کور بھی کیا اور مجھے یہ چیزیں یاد بھی ہیں۔ اب جو موجودہ سچویشن ہے، اب گرمی ان کو بڑی لگتی ہے، اچھا اب ان کو بہت گرمی لگتی ہے کہ بیرک میری بڑی گرم ہے، میرے تو ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی۔ جیل کا کون سا سیل ہے جس میں ٹانگیں سیدھی؟ کوئی جیل کا کوئی ایسا سیل بتا دیں جس میں ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں کس والی بیرک میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ یاد ہے جس جیل میں یہ وہ بہت سختی ہوئی تھی، اور اس جیل میں باقاعدہ طور پہ جولائی اگست میں ہوس شدید تھی، اور سنگل بالکل وہ سنگل سٹوری کمرہ تھا جہاں پہ رکھا گیا تھا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے، وہاں پہ میری ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی، 10 دن میں نے کپڑے وہی دھو کے پہنتا رہا ہوں۔ اب نہیں وہ میمز بنتے جو دوسرے نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے لوگوں ساتھ آپ کے مطابق جو ہے خواہش ہوتی نہیں، وہ تو ہوتی ہے، کھانا تو مل رہا ہے، اچھے والا کھانا مل رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ برداشت کریں۔ آپ نے جس طرح کا کلچر دیا ہے، جو آپ نے نوجوان نسل کو خراب کیا ہے، جو ان کی ذہن سازی کی ہے، آپ برداشت کریں چیزوں کو، ان کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے، نہیں تو نوجوان نسل آپ کی خراب ہو جائے گی، آپ کا مستقبل خراب۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اور پروگرام کی کنکلوژن میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ رواداری کا کلچر ہمیشہ رہنا چاہیے، احترام اور برداشت ہی کے ذریعے ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔